یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں ہم پرستش کے رہنما مشہور بادشاہ داؤد کے بارے میں پڑھتے۔ بڑا کامیاب ورشپ لیڈر تھا۔ آج دنیا میں ہزاروں ورشپ لیڈرز ہیں۔ پاکستان میں سینکڑوں پرستش کے رہنما ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک پرستش کا رہنما کن باتوں سے بنتا ہے؟ وہ کون سی تعمیر ہوتا ہے؟ آج ہم اس خاص ٹاپک پر بات کریں گے، دا فنڈامنٹلز فار ورشپ لیڈر۔ پرستش کے رہنما کے لیے بنیادی باتیں کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ مہمان خادمہ ہیں، بہن تموئے اوتا جاپان سے ہیں۔ گاڈ بلیس یو سسٹر جی، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائی ہیں اور ہمارے شارٹ انویٹیشن پہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ بہن تموئے اوتا جاپان سے بلانگ کرتی ہیں، ایف جی آف پاکستان ویمن منسٹری کی کو چیئر پرسن ہیں، ورشپ لیڈر کے خدمت کر چکی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی آپ بڑی خوبصورتی سے طور پرستش میں بھی خدمت کر رہی ہیں اور بہنوں میں بھی خدمت کر رہی ہیں۔ پرستش میں بھی آپ کی خدمت ہے اور اسی طرح بہنوں میں بھی آپ کی خدمت ہے۔ تو بہن تموئے اوتا، آج ہم بات کریں گے دا فنڈامنٹلز فار ورشپ لیڈر۔ ایک پرستار کے لیے وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو اس کو پرستار بناتی ہیں؟ پرستش کا رہنما کون ہو سکتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے؟ تو لوگ تو چرچ میں آتے ہیں نا، لیکن وہی لوگ، کچھ لوگ مسائل میں پھنس گئے ہیں اور دنیاوی باتوں میں، وہ اس کے ذہن میں بہت دنیاوی باتیں ہیں، اور کچھ لوگ مصروفیت میں ویسے چرچ آتے ہیں۔ اسی طرح جو جن کے ذہن میں بہت کچھ دوسری باتیں ہیں، ان کو لے کے خدا کی حضوری میں لے آنا، یہ ورشپ لیڈر کا کردار میں سمجھتی ہوں۔ واو، دیٹس گریٹ۔ اور ورشپ لیڈر تو خدا اور لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہونے کا کام ہے۔ اس لیے خدا کس طرح محسوس کرتا ہے اور کس طرح ان کو سکھانا چاہتا ہے، یہ سمجھ کے لوگوں کو پہنچانا ہے اور لوگوں کو لے کے خدا کی حضوری میں لے آنا، یہ اس کا کام ہے۔ آمین، دیٹس ٹرو۔ تو پرستش کے رہنما کی روحانی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہر روز دعا کرنا، ہر روز بائبل پڑھنا اور خدا کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یہ سب سے اہم میں سمجھتی ہوں۔ اور بس وہ میوزک میں ماہر لوگ تو بہت ہے، لیکن میں ایک میرے دوست کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ آف کورس۔ جو میں جب میں بائبل کالج میں پڑھتی تھی تب کی بات ہے کہ میری ایک کلاس فیلو میں ایک شخص تھا جس کا نام تھیتسیا۔ تو بائبل کالج میں یہ ہوتا ہے کہ ورشپ لیڈر کی پریکٹس بھی ہوتی ہے، تو وہی تھیتسیا کی باری تھی۔ تو میری نظر میں تھیتسیا اچھی طرح رہنمائی کی اور ورشپ ٹائم میری نظر میں اچھا لگا، لیکن اسی وہ پریکٹس کے بعد ریویو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اسی وقت ٹیچر نے بہت تھیتسیا کو ڈانٹا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں تھیتسیا کو اس طرح وہ ٹیچروں نے ڈانٹا ہے۔ تھیتسیا سے میں نے بات کی، کیا ہوا، آپ نے تو اچھی طرح رہنمائی کی ہے۔ تو لیکن تھیتسیا نے کہا، ہاں ویسے میں نے اچھا کیا تھا، لیکن میرے دل میں یہی بات آئی کہ دنیا میری ہے۔ مجھے اسی وقت میں سمجھ گئی کہ ہاں روحانی طور پر یہ خدا خوش نہیں تھا، اس لیے کچھ ماحول خراب ہو گیا، اس لیے ٹیچروں نے ڈانٹا۔ یہ نظر آتا ہے، ڈرنے کی بات ہے نا۔ اس لیے روحانی طور پر خدا کی حضوری میں
ठीक रहना बहुत ज़रूरी बात है। बहुत खूबसूरत वजाहत की आपने। और एक है वही या तेत्सिया अब अच्छे तरीके से उसी वक्त तौबा करके अब पादरी की खिदमत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। एक परस्तार में रूहानी खूबियाँ होने के साथ साथ प्रस्तुश के रहनुमा में मौसीकी में महारत की खसूसियात यानी म्यूज़िकल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? ये भी कुछ चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन ज़्यादा वो बड़ा स्किल लेने की ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन बुनियाद बहुत अहम है। या मसलन चर्च में ख़ास तौर पर गांव जाएं जिधर तबला है लेकिन हारमोनियम नहीं, इसी तरह जगह में किस तरह होता है, कुछ लोग क्वायर में चंद लोग हैं ना, इनमें से एक रब खुदावंद बादशाह है इस तरह शुरू कर देते हैं, और दूसरी रब खुदावंद बादशाह है, और तीसरी रब खुदावंद बादशाह है। ये तीनों इकट्ठे गायन तो अच्छा हारमोनी नहीं बनता। बिल्कुल सही। तो लीडर इनको अच्छी तरह वो करेक्शन करके एक ही सुर में, एक ही मेलोडी में, वो क्या है, यूनिटी में ले आना, ये रहनुमा का काम है। वंडरफुल। तो आपके नज़दीक प्रस्तुश के रहनुमा की जिम्मेदारियां क्या हैं? प्रस्तुश से पहले की तैयारी क्या होनी चाहिए? जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बुनियादी बात बहुत अहम है, यानी दुआ करके तैयारी करना, ये रूहानी तैयारी बहुत अहम है। लेकिन कम से कम वो जो गाने का इरादा है, ज़बूर है, गीत है, अच्छी तरह वो वर्शिप लीडर जानने की ज़रूरत है ना उनके लिए। और इसमें वो लिरिक्स, लफ्ज़ क्या है और मतलब क्या है और खुदा क्या कहना चाहता है, ये समझ के लीड करने की ज़रूरत है। और आम तौर पर अकेला तो वो नहीं गाते हैं ना, वो टीम के साथ तबले वाले, हारमोनियम और क्वायर्स, ये सारे यकसा रूह में गाने के लिए प्रैक्टिस तो कम से कम ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो रहनुमाई के दौरान एक वर्शिप लीडर की क्या जिम्मेदारी, ड्यूरिंग वर्शिप उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी हमारे सामईन नाज़रीन को बताएं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि खुदा और लोगों के दरमियान में खड़ा होना ये बहुत अहम काम है। इसलिए खुदा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, यानी पाकरू किस तरफ रहनुमाई कर रहा है ये सुनने की और समझने की, पहचानने की ज़रूरत है। और लोगों का हाल भी देखना पड़ता है ना, लोगों को लेके खुदा की हाज़िरी में ले आना है, ये काफ़ी बड़ा काम है। और खुद ही वो प्रेस्टिज भी खुद ही करके वो क्या है, नमूने के तौर पर भी दिखाना भी है ना, काफ़ी काम है। और म्यूज़िक भी अच्छी तरह बजाना भी है, गाना भी है, लेकिन ये काम सोच के तो नहीं होता, पाकरू रहनुमाई करता है। इसलिए इन पाकरू की रहनुमाई के मुताबिक अमर करना ये हमारा काम है। वंडरफुल वंडरफुल। एक प्रस्तार के मसाइल क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस ऑफ अ वर्शिप लीडर, उसके चैलेंजेस क्या हैं? जी, असल में जैसा अभी मैंने कहा कि पाकरू रहनुमाई कर रहा है ना, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वर्शिप लीडर को देखा कि अच्छी तरह गाने वाला है और अच्छी तरह बजाने वाले हैं, इसलिए इसको शो करने में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। या इसमें ये भी साथ शामिल करें कि मौसीकी और वर्शिप मिनिस्ट्री में वो तवाज़ुन कैसे कायम रख सकता है। असल में हमारा मकसद है ना, लोगों को खुदा की हुजूरी में ले जाना, ये हमारा काम है। इसमें अगर वो लोग
अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना शुरू करे तो लीडर कुछ पीछे हटने की जरूरत भी ही है, या ये भी समझने की जरूरत है। इसलिए सब कुछ खुदा को सौंपने की जरूरत है। वंडरफुल। और मेरे लिए एक आइडियल वर्शिप है कि लोग बहुत दिल से रूह से प्रस्तुत करें और खुदा खुश रहे और लीडर को लोग भूल जाएं। आमेन, आमेन, वंडरफुल। तो इसके साथ ये भी कि हाउ टू स्टेइंग रेलेवेंट, प्रस्तुत की रहनुमाई में बामकसद कैसे रहा जाए अपनी खिदमत में ड्यूरिंग सर्विस। जी, इसलिए जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि वो हमारा वर्शिप लीडर खुदा और लोगों के दरमियान खड़े होने का काम है, इसी तरह का किरदार है। इसलिए खुदा की आवाज़ सुन के खुदा के मर्जी के मुताबिक और फाकरू किस तरफ जा रहे हैं इसको पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए वर्शिप लीडर का नाम तो वर्शिप लीडर का किरदार है, लेकिन असल में लीडर फाकरू है। या आमेन, वंडरफुल। इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। फाकरू हमारा लीडर है। वंडरफुल। इसलिए फाकरू की आवाज़ सुनना, पहचानना ये सबसे अहम है। यकीनन बहुत खूबसूरत इलस्ट्रेशंस, बहुत खूबसूरत वजाहत हमने बहन तुमोई ओता से सुनी। वर्शिप लीडर कौन है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो जैसा हमने देखा, हमने सुना, लोग जब इबादत में आते हैं परेशान होते हैं, अपने अपने मसाइल से दो चार होते हैं, खुदा से दूर हो गए होते हैं, एक वर्शिप लीडर का काम है उनको खुदा की हुजूरी तक ले आए। और एक वर्शिप लीडर में रूहानी क्वालिटी ये होनी चाहिए, वो बिला नागा दुआ करने वाला, कलाम मुक़द्दस को पढ़ने वाला, खुदा के साथ उसका ताल्लुक़ बहुत अहम है। परस्तार के लिए ये भी अहम है कि वो मौसीकी में भी माहिर हो, फिर ही वो दूसरों की रहनुमाई कर सकता है। तैयारी प्रस्तुत से पहले बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमने जाना कि दुआ और कलाम के साथ तैयारी, खुदा की हुजूरी में ठहरना, गीतों का चुनाव, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कलीसिया में प्रस्तुत को या क्वायर को लीड करना बहुत अहमियत का हामिल है। खुदा की आवाज़ को पहचानना और लोगों की ज़रूरत को जानना परस्तार के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर परस्तार मौसीकी में बहुत माहिर होते हैं, मगर खुदा क्या चाहता है, बरक्स इसके वो अपनी महारत दिखाना पसंद करते हैं, जो गुरूर का सबब है। खुदा उनकी ज़िंदगी का सेंटर होना चाहिए, रूहुल कुद्स उनकी ज़िंदगी का सेंटर होना चाहिए। वो अपने ऑफिस के साथ, अपनी नेमत के साथ, अपने गिफ्ट के साथ वाबस्ता रहें, रेलेवेंट रहें। ज़्यादा शोरगुल ही प्रस्तुत नहीं है। कभी कभी मौसीकी का बंद करना, गाना बंद कर देना, प्रस्तुत गाते हुए रुक जाना, ये भी ज़रूरी है। प्रस्तुत का रहनुमा ज़ाहिरी तौर पर वो एक वर्शिप लीडर है, लेकिन कोई एक सुप्रीम बीइंग है जो उसको भी लीड कर रहा है, वो खुदा का पाक रूह है। और जो प्रस्तुत का रहनुमा, वर्शिप लीडर या प्रस्तार रूहुल कुद्स की रहनुमाई में प्रस्तुत लीड नहीं करता, वो अपने आप को दिखाता है। ज़िंदगी में अगर कोई प्रस्तुत में लीडर बनना चाहता है तो वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चले। बड़ी खूबसूरत बातें सिस्टर जी, प्रस्तुत के रहनुमा में बुनियादी बातें कौन सी हैं वो हमने जानी, सीखी। मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ, आप आईं, तशरीफ़ लाईं और हमारे साथ इस
ڈسکشن کو کیا. یقیناً یہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں یہ اس سے برکت پا رہے ہیں, اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں, میری روح میں ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, خصوصاً جو ورشپ لیڈرز ہیں, پرستش کے رہنما ہیں. آسمانی باپ, ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے, اور خاص طور پر ورشپ لیڈرز کے لیے. اے خداوند, یہ بہت بڑی خدمت ہے, یہ تیری پرستش کرنا یہ خدا کی طرف سے سبوں کو گفٹ کے طور پر دیا گیا ہے. اے خداوند, اسی ٹائم ہم اچھے طریقے سے یوز کر سکیں, اور اسی پرستش کے وسیلے سے لوگوں کو بہت برکت بخش دے. اور اے خداوند, تیرا جلال ظاہر ہو, اور اس کے لیے ورشپ لیڈرز اور تیرے پاس آ سکے, اچھے طریقے سے دعا کر سکے, اور بائبل پڑھ سکے, سمجھ سکے, اور تیری آواز سن سکے. اصلی لیڈر پاک روح کی رہنمائی کے مطابق اچھے طریقے سے لیڈ کر سکے. اور اے خداوند, پرستش کرتے وقت تیرا جلال ہمیشہ ظاہر ہو, اور لوگ تیری حضوری میں سکونت کر سکے. ان لوگوں کو برکت بخش دے, اور ان لوگوں کو اپنے جلال کے لیے یوز کرتے ہیں. اسی وقت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں ہمارے پیارے یسوع کے نام میں, آمین آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. Thank you so much. God bless you. God bless you too. Thank you for watching. God bless you all.